chapter is chapter number which? Chapter number 8. Okay? Chapter number 8, property application of integral. Application of integral. Okay? Application of integral. So in this particular chapter, we find the area bounded by the curve. Area bounded by the curves. So there are three conditions in which area is bounded. The first one is, suppose area bounded by the curve and a particular line. Area bounded by curve and line. So this particular area is area bounded by the curve and area bounded by this particular line. Suppose this is x is equal to a, this is origin, x dash, y dash. ओके, इसके क्वेश्चन सबसे टफ माने जाते हैं, जबकि ये सबसे आसान हो जाए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है. ओके, द सेकेंड कंडीशन इज एरिया बाउंडेड बाय बिटवीन द कर्व एंड कर्व. दैट मीन्स एरिया बाउंडेड बाय बिटवीन द टू कर्व्स. सो दिस पर्टिकुलर area is area bounded between two curves. Not this is only one example. Okay, that is there are two curves, both are parabola. Maybe one is parabola, one is circle, one is parabola, one is ellipse. Okay, so this is the area bounded between the curve and curve. Okay, area bounded between the curve and curve, that means area bounded between two curves, area bounded between a line and a curve. Okay, and area bounded between only curve we also see, that means x y x dash. This is also area bounded between the curve and line, but simply I tell you about the curve y, because there is no extra line, only x-axis. X-axis is also a line, y-axis is also a line. So maybe this is the suppose this is the curve, okay, and we need to find the area bounded between this particular curve. Okay, हो सकता है इस तरह से हो, maybe like this area. Okay, so simple rule of finding this particular area bounded between the curve or line, simply you will find the limit. Okay, suppose if you want to find this particular area, so x is equal to 0, this is, and this is x is equal to a. So from 0 to a and this particular curve, that means equation of this curve. Okay, suppose this is y and okay, so first you note it down, then I will start next step. Okay, note down. सपोज करिए कि ये कर्व आपको दिया गया है और आपको इस कर्व का एरिया फाइंड करना है. ओके, you need to find the area bounded between this curve. Okay, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बहुत छोटी सी स्ट्रिप बनाते हैं. क्या करते हैं, ये बहुत छोटा स्ट्रिप इसका लेते हैं. देखने में यहाँ बड़ा लग रहा है, बहुत छोटा है. ठीक, और सपोज कर लें कि हमको ये x इज इक्वल टू a है और ये x इज इक्वल टू b. हमको इतने ही दूर का एरिया फाइंड करना है, यानी ये पूरा एरिया फाइंड करना है.
कहाँ से कहाँ तक का, x इज इक्वल टू a टू b का। तो बहुत सिंपल है, ये स्ट्रिप कितना है, dx है, ठीक है। जब dx लेंगे तो हम कर्व क्या लेंगे, x के टर्म में, x के टर्म में मतलब y इज इक्वल टू fx टाइप का, है ना, y इज इक्वल टू fx टाइप का। सपोज करिए ये कर्व क्या है, y इज इक्वल्स टू fx, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, लिमिट कहाँ से, a से b, y dx क्या होगा, y dx या a टू b fx dx। तो fx dx मतलब फंक्शन का इंटीग्रल हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रख देंगे, डिफरेंट इंटीग्रल में आपने देखा है, क्लियर। अरे कॉन्सेप्ट वाली चीज जो है बेटा यहाँ पे ये है कि इस लिमिट के अंदर जो एरिया निकलेगा ना, वो इस कर्व के नीचे का ही एरिया होगा। ये चीज आपको ध्यान देना, आपके दिमाग से ये फाइंड करना है कॉन्सेप्ट के तौर पे कि इस कर्व के नीचे का एरिया कौन सा आ रहा है ना, कर्व के नीचे, डाउन द कर्व, ओके। सपोज करिए कि कर्व इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया, ठीक। इस कर्व के अंडर एरिया अंडर दिस कर्व यही हो, क्लियर, ओके। इसको निकालने का एक और तरीका है क्या, हम स्ट्रिप को y एक्सिस के उसमें ले लें, ठीक है। मान लीजिए कर्व हमारा यही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस कर्व भी यहाँ कंसिडर कर सकते हैं, हम थोड़ा कर्व इस तरह से बना लें, ओके। सो दिस इज द अनदर मेथड। यहाँ पे जो स्ट्रिप होगा, ये स्ट्रिप dy होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे जो एरिया आएगा इंटीग्रल ऑफ, मान लो a टू b है, सपोज करो यहाँ से x इज इक्वल टू a टू, सॉरी यहाँ तो लिमिट y की लग जाएगी ना, y इज इक्वल टू a टू, y इज इक्वल टू b, a टू b x dy, क्या होगा, x dy या fy dy। तो ये लिमिट किसके लिए काम कर रही है, y के लिए काम कर रही है, ठीक है। बहुत कम जरूरत पड़ती है, इसी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। में भी आपकी इच्छा है तो सारे बुक में दोनों मेथड दिया हुआ है, क्लियर। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एरिया अंडर द कर्व क्या होता है। आप कहते हैं ना कि अर्जुन को खाली चिड़िया की आंख दिख रही थी, अब बाकी लोगों को बहुत कुछ दिखता था, तो आपको यहाँ पे कर्व के नीचे का एरिया क्या ये दिखना चाहिए, कि अगर बदल दिया तो परेशान हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे एक सर्किल है ना, और हमको इस सर्किल और y इज इक्वल टू x जो लाइन है ना, इसके बीच का बाउंडेड एरिया फाइंड करना है। ये कर्व कौन सा है, कहाँ किसके नीचे का एरिया निकाल दोगे, सर्किल के, नहीं, क्या इस लाइन के नीचे का एरिया पूरा हो जाएगा, नहीं हो। लाइन के नीचे का एरिया क्या है, लाइन अगर ऐसे है, इसके नीचे का एरिया तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये एरिया है ना, यहां भी क्या करना पड़ेगा, है ना। तो ये परपेंडिकुलर लाइन के नीचे, तो ये पार्ट हो गया, ये लाइन के नीचे का हो गया, और ये इतना कर्व के नीचे हो गया, अंडर द सर्किल। दोनों को निकालिए, ऐड करिए, तब आ सकते। बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया अंडर द कर्व, इतना ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको आप कैसे ट्रीट करते हो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ गलत कर दिया। ऐसे दे देगा पैराबोला, है ना, और एक लाइन, है ना, इसके बीच का बाउंडेड एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अभी तो बताने के लिए बहुत सारे बताएंगे, कर्व है, दो कर्व है तो y1 माइनस y2 dx कर दीजिए, पहला कर्व माइनस दूसरा कर्व और फिर dx,
सारे बच्चे उसी में परेशान रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पे नहीं ध्यान देते। कॉन्सेप्ट क्या है? आपको कुछ नहीं सोचना है, कोई मेथड कोई फार्मूला नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? एरिया अंडर द कर्व। अपने दिमाग से सोचेंगे कहाँ का एरिया फाइंड करना है, हमको ये करना है, तो कैसे आएगा ये? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्या करना है? इस लाइन के नीचे का एरिया यानी ट्रायंगल का एरिया है, तो ट्रायंगल का भी डायरेक्ट नहीं निकालना, इंटीग्रल से निकालना। अभी उस सब पे खूब डिस्कस करेंगे हम, ठीक है? बहुत क्वेश्चन बताएंगे, जितना कहो बताएंगे, उड़ा के नहीं पढ़ाएंगे, है ना? जिसने भी कमेंट किया हो भाई उड़ा के पढ़ाने वाला, तो वो काम नहीं है। देखिए बेटा, आ गया समझ में? एरिया अंडर दिस लाइन माइनस एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व क्यों हो रहा है? ये पूरा तो ट्रायंगल हो गया ना, हमको ये पार्ट निकालना है कि ये एरिया अंडर कर्व ये बना, ये एरिया अंडर कर्व बना ना, इसको हम माइनस करेंगे ट्रायंगल में से, तो खट से वो आ जाएगा, है ना? फिगर में कहाँ देखना है, कैसे देखना है, यही सबसे बड़ा मैटर करता है, ठीक है? तो हम चलते हैं, कुछ एग्जांपल कंसिडर करते हैं, है ना? तो अगर आपको नोट करना तो नोट कर लीजिए, फार्मूले हैं, सो नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट यू सी सम एग्जांपल्स, जैसे बेटा बुक से ही बोलो तो हम ज़्यादा अच्छा रहेगा करने में, है ना? आपका एक एक क्वेश्चन भी होता रहेगा। इंटीग्रल हम नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन आपको करना है, लिमिट आपको रखना है, हम आपको सिर्फ मेथड बताएं, ठीक है? तो चलते हैं बेटा, कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 1 को ही देख लो, बहुत आसान है ना? एग्जांपल नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये एक सर्किल है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, इस सर्किल से बाउंडेड एरिया, यानी एक तरह से बेटा आपको इस सर्किल का एरिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हाँ, इस सर्किल का, भाई सर्किल से बाउंडेड एरिया क्या होगा? सर्किल का एरिया तो होगा, लेकिन इंटीग्रेशन मेथड है, आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई ए स्क्वायर, इसका रेडियस क्या है? एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। खूब कोनिक सेक्शन जो पढ़े उसको याद करो, ये ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है ना, और जिसका रेडियस कितना है? ठीक है? तो रेडियस हमको यहाँ से नहीं बल्कि ये मान लेते हैं, ये रेडियस है ना, ये भी तो है ना। तो अगर ये 0 0 है तो ये क्या है? ठीक है? और हम ये सब क्वाड्रेंट है ना, एक किसी का निकाल लें, 4 टाइप से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया, सीधे सीधे A इज इक्वल टू 4 टाइम्स, कहां से कहां लिमिट है? यहाँ पे अगर एक स्ट्रिप हम देख लें dx, ऐसे बना देना, ठीक है? dx, हाँ, तो ये स्ट्रिप देख ले तो कहां से कहां तक का एरिया है? x इज इक्वल टू 0 लाइन है ना, ये पॉइंट, लिमिट 0 टू a, 0 टू, ठीक है? और y dx क्या होगा? 0 टू a y dx। तो y की वैल्यू क्या होगी? आप बताओ, कर्व से लेंगे ना, कर्व के नीचे फाइंड करते हैं, लाइन होता तो लाइन की वैल्यू लेते हैं, कर्व का लेंगे ना, तो कर्व क्या आएगा? y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और आप यहाँ पे 4 टाइम्स 0 टू a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। तो डायरेक्ट इंटीग्रल पता है, या तो डायरेक्ट पता है तो फॉर्मूला बताया था, अदरवाइज आप फाइंड करें इंटीग्रल, तो फाइंड करना टफ है, आसान है क्या? y इज इक्वल टू 0 टू a, इसको हम लिखते हैं इंटीग्रल, क्या होता है? a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स ना, हाँ, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस प्लस a स्क्वायर बाई 2, ये x बाई 2, ये x बाई 2 a स्क्वायर एंड a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c की जरूरत है, डेफिनेट इंटीग्रल है। तो कहाँ से कहाँ तक बेटा? 0 टू a। अब लिमिट रखना आता है, लिमिट रख लीजिए। कैसे? जब यहाँ रखेंगे बेटा a,
ये 0 कर देगा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जब a रखेंगे तो 0 कर देगा, सबको दिख रहा है ना बेटा, ये 0 कर देगा। और जब यहाँ a रखेंगे तो साइन इनवर्स a बाई ए पाई बाई 2 हो जाएगा ना, साइन इनवर्स a बाई साइन इनवर्स 1 हो गया तो पाई बाई 2, क्लियर। तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स 0 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई ए यानी 1, और 0 रहने तो सब 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, ये 4 कैंसिल, आंसर क्या आ गया वाई ए। ठीक है, हम आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछे, बहुत आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग शायद इस चीज़ को नहीं जानते, व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इलिप्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इलिप्स, किसी को नहीं पता है, पढ़ा ही नहीं, कभी कभी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इंटीग्रल आपको बताता है इलिप्स का एरिया क्या होता है, जिसका माइनर और मेजर एक्सिस ए और बी है, पाई इंटू ए बी। अभी इसके बाद हम उसी को निकालने जा रहे हैं, पाई इंटू ए बी, क्लियर। सो नोट इट डाउन, जल्दी नोट करो, बाकी की बुक में ही है ना। तो आज आपका जो होमवर्क है, आज हम इसमें ज़्यादा आपको वो नहीं करेंगे, ठीक है। हम तो पूरा चैप्टर पढ़ा दिए एक तरह से, ठीक है, लेकिन हमको इसमें अभी 2 दिन 3 दिन क्वेश्चन करना है। तो आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल आप लगा के आइएगा, शुरू वाले, ठीक है ना, बेसिक से। भाई इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि वो एग्जाम में आता है, इसलिए पढ़ा जाता है उसका कई यूज होकर के एग्जाम में आता है। इससे एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का फिक्स समझिए। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा ये भी हम बता देंगे आपको, इससे हर साल बताते हैं वही आता है ना, 2-3 बताते हैं कि इसी में से पढ़ लीजिएगा वही मिलेगा। हाँ, तो आपको कौन सा क्वेश्चन आएगा हम बता देंगे, ठीक है, लेकिन पूरा पढ़ने के बाद, पहले पूरा पढ़े ना, तो आपको पूरा पढ़ नहीं करेंगे, उसी के पीछे पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट हमने दे दिया है, पूरा क्वेश्चन, पूरा एक्सरसाइज का, हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक चीज जरूर है इसमें कि जैसे एरिया है ना बेटा, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। एरिया भी नेगेटिव नहीं होता है और लेंथ भी, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ। तो अगर नीचे का एरिया निकालते हैं तो नेगेटिव लिखिए, लेकिन उसका मॉडुलस ले लीजिए। क्या ले लेंगे बेटा, उसका मॉड ले लेंगे, ठीक है ना। तो मॉड लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर। तो ये पहला क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, ये समझ में आया कि नहीं। सो नेक्स्ट यू सी, हम इलिप्स ले लें क्या, इलिप्स का एरिया फाइंड कर दें, चलिए। हाँ, कोनिक सेक्शन के बारे में भी खूब नॉलेज होना चाहिए, क्यों, क्योंकि कर्व तभी ना बना पाओगे जब कोनिक सेक्शन जानते हो। अगर सपोज करो उसी में क्वेश्चन होगा बेटा, हम आपको इलिप्स का एरिया भी बता रहे हैं आज, और कैसे फाइंड करना ये भी बता रहे हैं। पता है कितने कोन, सिलेंडर, फ्रस्टम जो भी पढ़ते आए हो तुम, उसका प्रूफ पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का एरिया होता है या सरफेस एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, क्या होता है, ये आपको पता है 10th में, लेकिन आपने इसको कभी प्रूफ नहीं किया है। अगर कोई बहुत प्रूफ बताता भी है कोई टीचर, तो यही बता देता है कि उसको कट कर लो बेटा, वो रेक्टेंगल हो गया और उसका 2 पाई आर लेंथ हो गया और ये हाइट हो गया, तो सरफेस एरिया 2 पाई आर एच आ गया। लेकिन वॉल्यूम तो तब भी वॉल्यूम भी कोई बताएगा क्या, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ले लीजिए, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, तो पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट एच हो जाता है ना। लेकिन फिर कोण में क्या होगा, है ना, तो फिर कहने लगेंगे एक्सपेरिमेंटल बताने की ये 1/3 होता है, इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन ये इंटीग्रेशन आपको सारे शेप का एरिया और वॉल्यूम देता है, इंटीग्रेशन को यूज करके, है ना। तो ये चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम नहीं बताएंगे। लेकिन अगर आप इच्छा रखते हैं तो आप पढ़ के आइए, तो हम बता देंगे, कहीं ढूंढ के आइए, पूछिए, हम बता देंगे,
कॉन्सेप्ट यही है, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए। तो इलिप्स की बात कर रहे थे बेटा हम, y डैश, x डैश, ओरिजिन x, आपको पता ना माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस पता ना 2a होता है, ओरिजिन सेंटर 0 0 है, तो आपको पता है ये क्या है, a, 0 है, माइनस a, 0 0, b माइनस 0 है ना, क्लियर है? तो निकाल देते हैं, एक स्ट्रिप ले लेते हैं बेटा यहाँ पे हम, हाँ इसको y से भी निकाल सकते हैं, ऐसे ले लेते हैं तब भी होता, लेकिन हम इसी तरह ले लेते हैं, बताया ना कि आपको यूज यही करना है जनरल। क्या होगा y dx, सिंपल सा, कहाँ से कहाँ तक लिमिट, 0 to a, हाँ क्यों, y की वैल्यू तो निकाल सकते हो ना, क्या होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, है ना, y इज इक्वल टू b बाई a। कैलकुलेशन आता है, हाँ नहीं आता तो चलो और पानी लो भाई, किस लिए, पीने के लिए, ठीक है, आता है कि नहीं कैलकुलेशन। सो y इज इक्वल टू b बाई a, बाहर ले लें, अब फिर से वही पुरानी कहानी आ गई, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब इसको हम दोबारा थोड़ी ना करेंगे, क्या लिखेंगे, बोलिए ये क्वाड्रेंट है ना, इसका भी 4 टाइम होगा, है ना, तो 4 टाइम बाद में करेंगे, देखेंगे। पहले तो b बाई ए, है ना, और क्या होगा, पाई बाई 4a स्क्वायर, बोलिए अभी अभी निकाला है हमने, निकाला था, 4 से मल्टीप्लाई किया तभी ना पाई a स्क्वायर आया, ए से कैंसिल, तो ये आ गया पाई ए बी अपॉन 4। सो रिक्वायर्ड एरिया मतलब पूरे का एरिया ए इज इक्वल टू 4 इंटू पाई ए बी बाई 4। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे।